Students, today I will explain nutrition in plants, that is the topic of class 7 first chapter. Okay, so let's start. Nutrition in plants. You can see here food is the most important and basic thing for life. Carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are the components of food. These components are necessary for all living beings. All plants and animals require food for their growth and getting energy. The process of utilization of food by an animal to obtain energy for growth and development is known as nutrition. So you can find out the definition here. Okay, what is the definition of nutrition? You can see here. And plants make their food themselves, but animals cannot. Hence, animals depend directly or indirectly on the plant. So, student, you can see here food is the basic, or we can say that it is the basic things for life. फूड सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या हमें एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी की को जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो इन्हीं से मिलती है. एंड द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड ऑफ एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन, अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं, खुद मेक करते हैं. बट एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं. यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस एक टर्म होता है उसको देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये तीनों मिल करके प्लांट अपना फूड बना रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है. प्लस आपको क्या मिल रहा है? आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. यू हैव सम क्वेश्चंस हियर. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? यू कैन फाइंड इट. Carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals are the component of food. What is nutrition? The process of utilization of food by living organism to obtain energy is called nutrition. And why is needed of nutrition? क्यों ज़रूरत होता है? You know that plants are able to make their food themselves, but animals कैन नॉट. आप जानते हो प्लांट्स, एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना पाते लेकिन प्लांट्स बना लेते हैं. तो एनिमल्स कहीं ना कहीं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसीलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. यू कैन सी हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस autotropic mode of nutrition. Auto means self and tropos means nourishment. Plants are called autotroph because they make their food themselves. Plant को autotroph कहा जाता है क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट. तो प्लांट्स जो अपना भोजन खुद ही बना ले उनको हम जो भी प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. The making of food for themselves is called the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition found in green plants. किस में पाया जाता है autotrophic nutrition? केवल green plant में पाया जाता है. Autotrophic, auto means, you can see here, auto means self and tropos means nourishment. Second one is heterotropic mode of nutrition. The word heterotropic is the combination of two words, hetero plus tropos. Hetero means others and tropos means nourishment. जो एनिमल या प्लांट, जो एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉपिक उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे. सो इफ़ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इट्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अगर ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है या दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Animals cannot make their food themselves. They depend for food upon plants. Therefore, nutrition in animal में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Animals are known as heterotrophs.
You can see here, this is the cow and this is the some other animals which are depend for food for another organism, on another organism. Third one is saprotropic nutrition. The taking up nutrient by organism from dead and decaying matter in the form of solution is called saprotropic nutrition. The organism which use saprotropic mode of nutrition are called saprotroph. जो organism saprotropic mode of nutrition को adopt करते हैं उन्हें saprotrophs कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे फंजाई हो जाएगा. एंड द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बाई ये जो सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर मतलब सड़े गले पदार्थों पे या सड़े गले सब्सटेंसेस पे डिपेंड होते हैं और उसको सॉल्यूशन फॉर्म में बॉडी में इनटेक करते हैं. So question you can see here, what is autotrophs? Organisms that make their food themselves are called autotrophs. What is the autotrophic mode of nutrition? So the mode of nutrition in which the organisms make its own food is called autotrophic mode of nutrition. Give some examples of autotrophs. So all green plants such as grass, mango, bougainvillea, etc. are the example of autotrophs. Give example of heterotrophs. So animals and non-green plants are the example of heterotrophs. What is saprotrophs? Plants which get their nutrition from dead and decaying plants in liquid form are called saprotroph. Photosynthesis, food making process in plants. The process of making of food by green plants in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. Photosynthesis is the combination of two words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to make. Process of food making in green plants. Green plants make their food themselves. Green leaves make food from carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. Hence, for taking place of photosynthesis, carbon dioxide, water and sunlight must be reached at the green leaves in addition to presence of chlorophyll. So student, you can see here photosynthesis. What is the meaning of photosynthesis? Photos means light and synthesis means to make, how to make the food. Okay, so इस process में क्या होता है, plant जो है carbon dioxide, you can see here, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्लांट अपना फूड मेक करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है C6H12O6 प्लस आपको या हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस वी कैन से. सेक्शन ऑफ लीफ. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द सेक्शन ऑफ लीफ. अगर हम सेक्शन लीफ की सेक्शन को कट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें दिखाई पड़ती, जिसमें हमको स्टोमेटा दिखाई पड़ेगा. एक टीनी पोर्स होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. मान लीजिए आपकी लीव्स है तो इस लीव्स में ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ते हैं आपको, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं. और स्टोमेटा के अंदर ही क्या क्या होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है, जिसमें एक्सेस वाटर अगर प्लांट ले लेता है तो वाटर वहाँ से निकलता है, या कह ले फूड मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वहाँ होती है. गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है. फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू बी टेकन प्लेस. फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. सबसे पहले सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ये चारों चीज़ें नहीं हैं तो फोटोसिंथेसिस आपकी परफॉर्म नहीं होगी. फोटोसिंथेसिस इन एल्गी में अगर हम फोटोसिंथेसिस देखें, एल्गी के बारे में आपको पता होगा कि एल्गी जो है वो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरे हरे आपको ग्रीन कलर के बरसात के महीने में दिखाई पड़ते हैं, वो आपके एल्गी होते हैं.
So green patches in ponds or near the stagnant water can be seen easily. These green patches are living organism called algae. ये जो green patches आपको ponds के किनारे या stagnant रुके हुए water में ponds में दिखाई पड़ते हैं, इसी को हम algae बोल रहे हैं. algae भी आपके plants होते हैं. Often algae grow near the shallow waterlogged area such as near tube wells, tap etc. ये जहाँ पे water logging होती है ज़्यादातर ये algae वहाँ पे उनकी growth होती है. वन में स्लिप ओवर, हम उस पर अगर तेज़ी से चले या संभाल के न चले तो हम उस पर फिसल भी सकते हैं. इट एल्गी लुक लाइक ग्रीन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. एल्गी ग्रीन क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि एल्गी के अंदर क्या चीज़ें होती है? क्लोरोफिल पाया जाता है. एंड जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो अपना फूड खुद ही फॉर्म करेगा. सो एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. What is photosynthesis? So student, the process of making food in green plants in the presence of sunlight is known as photosynthesis. Second question, what are the essential factors for the photosynthesis? So essential factor: carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. These are the essential factors which are responsible for the photosynthesis. Third one, what is chlorophyll? So chlorophyll is green pigment present in green leaves. Why do leaves look green? क्यों ग्रीन दिखाई पड़ती है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि एक पिगमेंट है. नेक्स्ट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. जो सन से सनलाइट आती है क्लोरोफिल उसी को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट मेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस? सो प्लांट अपना फूड बनाएगा, ग्लूकोज, C6H12O6 और आपको क्या देगा? ऑक्सीजन. सो दीज टू आर द फाइनल प्रोडक्ट्स मेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस. What are stomata? So stomata are small or teeny pores on the lower surface of the leaves are called stomata. प्लांट जो लीव्स का लोअर सरफेस होता है वहाँ पे ये टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोल रहे हैं. What is the function of stomata? So stomata absorb carbon dioxide from air for photosynthesis. What is the ultimate source of energy? Sun. Sun is the ultimate source of energy. How water is transported to the leaves? So water is transported to the leaves through pipe-like structure from the roots of plant. These pipe-like structure are present from root to leaves through branches throughout. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या फूड फॉर्म होता है? तो प्लांट्स नीड प्रोटीन्स एंड फैट्स बिसाइड द कार्बोहाइड्रेट. प्लांट को प्रोटीन और फैट की भी ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट के अलावा. सो प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. ऑल्दो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in atmosphere, but plant cannot absorb atmospheric nitrogen. Plant gets nitrogen from soil. Certain types of bacteria called rhizobium are present in soil. They convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. Plants absorb these soluble forms of nitrogen along with water and other mineral through their roots. क्या होता है कि प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो भी फैट्स है या कह लें कि प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है. तो प्लांट कैसे इसको फॉर्म करता है? मान लो कि ये कोई प्लांट है और इसकी ये लीव्स वगैरह हैं. सो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है. और आपको पता है कि जो भी लेग्यूनस प्लांट होते हैं, लेग्यूनस प्लांट का मतलब दलहन वाली फसलें, जैसे मटर, एक पी प्लांट कह ले या ग्राम का प्लांट कह ले, तो इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स में ऐसे नोट्स प्रेजेंट होते हैं और नोट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं. जैसे यहाँ पे आपने राइजोबियम देखा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा. ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को अपटेक कर लेगा क्योंकि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं. इनको रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती. तो जब ये इसको अपटेक कर लेंगे इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फिर ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपटेक करने के बाद इनमें कुछ ये इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे. अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉइल में मिक्स हो जाएगा
और सॉइल के द्वारा फिर रूट्स के थ्रू ये प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिया जाएगा। तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से ये अपने बॉडी में या प्लांट अपने बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को या प्रोटीन की कमी को दूर करते हैं। You can see here some questions. What are nutrient other than carbohydrate which are required by plants? So protein and fats. Question number 2, in which form do plant absorb nitrogen? Plant absorb soluble form of nitrogen. रूट्स के थ्रू भी मैंने बताया। वाई डू फार्मर्स एड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल? सो फार्मर्स एड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द प्लांट। कभी कभी फील्ड्स में प्लांट्स को नाइट्रोजन को हम ऐसे ही फर्टिलाइज़र के थ्रू उनको ये फर्टिलाइज़र क्या कहते हैं का स्प्रिंकल करके उनका छिड़काव करके हम उनकी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। Which microorganism help to provide nitrogen to the plants? So बैक्टीरिया, उसका नाम है राइजोबियम। How do plants absorb nutrient other than carbohydrate? तो other than carbohydrate, nutrients are available in the soil in the form of minerals. Plants absorb these minerals from the soil along with water. Modes of nutrition in non-green plants. Heterotropic mode of nutrition. Some plants do not have the chlorophyll, hence they cannot synthesize their food by themselves. Such plants are known as non-green plants. They depend on other organisms for food. Such plants use the heterotropic mode of nutrition. Some of them are called parasite. A parasite is an organism which lives on or inside the body of another organism and takes shelter and food from that organism. The host in this case is always at loss. इसमें क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं वो किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और दूसरे की बॉडी का न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं। तो होस्ट क्या है, होस्ट वो है जो जिनकी बॉडी पे ये पैरासाइट रहते हैं उन्हें होस्ट बोला जाता है। और होस्ट का हमेशा ही लॉस होता है क्योंकि उसकी बॉडी में रह करके उसके बॉडी का न्यूट्रिशन ये अपटेक करते रहते हैं। जैसे लीच का केस हो गया, या हमारे हेड में जो इंसेक्ट्स रहते हैं, या कह लीजिए कि हमारे हेड में जो माइट्स वगैरह रहती हैं वो सब, या जो बैफाइलो वगैरह को पॉन्ड्स में जब वो जाती हैं तो उनमें एक लीच लग जाती है तो वो उनका न्यूट्रिशन अपटेक करते रहते हैं। तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और उनका न्यूट्रिशन अपटेक करते रहते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स बोले जाते हैं। एंड प्लांट्स विच लिव ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। और वो प्लांट जो फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। You can see here some question. What do you understand by parasitic plants? So a plant which lives on another plant and takes nutrient is called a parasitic plant. Give one example of parasitic plant. So Cascota and Mistletoe. Why some plants are called parasites? Some plants are unable to prepare their own food and need to take food from another, hence they are called parasites. What is the mode of nutrition in non-green plants? Non-green plants always show the heterotropic mode of nutrition. What do you understand by non-green plants? So non-green plants which lacks the chlorophyll are called non-green plants. What do you understand by host? An organism which provides shelter to and nutrition to another organism is called host. What is partial parasite? A parasite which depends for some of nutrients एंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पार्शियल। पार्शियल मतलब वो हाफ पार्शियली क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करे, और क्या कहते हैं पार्शियली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं पार्शियल पैरासाइट। गिव एग्जांपल ऑफ पार्शियल पैरासाइट। सो मिस्टेलेटोय, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। सच प्लांट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। दे ट्रैप द डाइजेस्टेड, वो क्या करते हैं ट्रैपिंग करते हैं, या हम कह लें कि इंसेक्ट को ट्रैप करके उनका डाइजेशन करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में पीचर प्लांट है, या ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जांपल होता है। इन पीचर प्लांट द लीफ इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पीचर लाइक स्ट्रक्चर। इन पीचर प्लांट में जो लीव्स होती है उनका मॉडिफिकेशन होता है और वो पीचर की तरह मॉडिफाइड हो जाती हैं, एक घड़े की तरह।
द ब्राइट कलर ऑफ द पिक्चर मेक्स इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट, और इनका जो कलर होता है ब्राइट कलर होता है जिससे इंसेक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एंड वो पिक्चर के अंदर आ जाते हैं। फिर ये उनको इनके पिक्चर में या कह लीजिए कि वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स नीचे की ओर ट्रैप होते हुए चले हो जाते हैं उस पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। जब उसके अंदर वो चले जाते हैं, व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिक्चर ऑफ द प्लांट द लिड क्लोज्ड, जब क्या होता है कि जब ये इंसेक्ट आते हैं पिक्चर प्लांट पे तो वो पिक्चर के ऊपर जैसे ही बैठते हैं उनके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अपने आप लिड लाइक स्ट्रक्चर इनके बैठने के बाद ही वो क्लोज हो जाता है और वो उसी के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। और इनके बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं पिक्चर प्लांट्स के, और वो एंजाइम सिक्रेट करके उनको वो किल कर देते हैं। जनरली ये उन प्लांट्स में होता है जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन को फुलफ़िल करने के लिए ये ट्रैप होता है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को इसीलिए ट्रैप करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी जो उनकी बॉडी में है उसको वो फुलफिल कर लें। कॉज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स बाई प्लांट, द सॉइल ऑफ मार्सी लैंड इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये प्लांट्स को ट्रैप करते हैं। देयर नाइट्रोजन नीड टू फुलफिल्ड बाई सकिंग द जूस ऑफ इंसेक्ट्स, Venus flytrap, Utricularia, Drosera and Rafflesia are another example of insectivorous plant। ये सब प्लांट्स ऐसे ही करते हैं, जैसे Venus flytrap हो गया, Utricularia हो गया, Drosera, Rafflesia, ये सारे आपके पिक्चर प्लांट हैं। एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट? अ प्लांट विच फुलफिल द नाइट्रोजन नीड बाय ईटिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई, ब्लैडरवर्ट, ड्रोसेरा, रेफ्लेशिया। वाई डज अ प्लांट ईट इंसेक्ट? क्यों इंसेक्ट को ईट करते हैं? टू फुलफिल देयर नाइट्रोजनस नीड। Question number 5, write a brief note on pitcher plant. So pitcher plant is the plant which the leaf is modified into a pitcher like structure. The pitcher is complete with a lid and the inside of pitcher is full of hair like structure. Hair like structure भी होता है। The pitcher is used to trap insect which may fall in it. Saprotrops are the non-green plants. Example agaricus या मशरूम आपने देखा होगा, फंजाई, ईस्ट, ये सब सैप्रोफिटिक होते हैं। एंड बैक्टीरिया। सैप्रोट्रॉप्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंडिंग, मैंने बताया था कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं और क्या कहते हैं, डेड एंड डिकेड मैटर को वो लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके उसको वो अपटेक करते हैं। सेप्रोट्रॉप सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ओवर द डिकेइंग मटेरियल्स। ये क्या करते हैं कि जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है उस पर एक जूस सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, और उसको क्या कहते हैं फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने बॉडी में अपटेक कर लेते हैं। सिम्बायोसिस और म्यूटिलिज्म। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस मैं आपको जनरल में बता दूं कि सिम्बायोसिस में जैसे दो ऑर्गेनिज्म हैं तो दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। जैसे लाइकेन आपने सुना हो, लाइकेन्स में एल्गी होता है प्लस फंजाई, ये दोनों साथ में होते हैं, फंजाई एंड एल्गी। एल्गी अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड्स में कि एल्गी हैव द क्लोरोफिल, सो एल्गी अपना फूड बनाएगा लेकिन फंजाई अपना फूड नहीं बना पाता, तो एल्गी को वो फूड प्रोवाइड करेगा और फंजाई इसको शेल्टर देगा एल्गी को। तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये एक तरह का सिम्बायोसिस हुआ या म्यूटलिज्म हो गया। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, सिम्बायोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, सिम मीन्स विद एंड बायोसिस मीन्स लिविंग, जो साथ में रह रहे हो, विच मीन्स लिविंग टूगेदर। इन सिम्बायोसिस आर म्यूटलिज्म, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ईच अदर। They share shelter and nutrient. Example lichens. Lichens are composite organism composed of fungus and alga. Fungus is a saprophyte and alga is an autotroph. फंगस जो होता है सैप्रोफिटिक होता है और एल्गा ऑटोट्रॉप, बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल एंड दे आर कैपेबल फॉर मेकिंग देयर फूड। द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल टू द सेल ऑफ द एल्गा। जो फंगस होता है वो वाटर और मिनरल की सप्लाई करता है एल्गा को, और जो एल्गा होता है वो क्या कहता है फूड की सप्लाई करता है फंगस को।
सो अ बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ राइनो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। राइनो के ऊपर एक बर्ड बैठती है जो सिम्बायोसिस को शो करती है। द बर्ड गेट्स वॉर्म्स टू ईट वाइल द राइनो गेट्स राइड ऑफ दोज वॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। कैसे रिप्लेनिशमेंट हम कर सकते हैं अगर आपके सॉइल में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं या मैन्योर ऐड करते हैं। सो सम फंगस लाइक इन रूट्स ऑफ द प्लांट, रूट्स इन द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द फंगस वाइल फंगस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट कीप डिक्लाइन। अगर लगातार हम किसी टाइप के फसल की क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो उस स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए हम उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, हम उसमें मैन्योर ऐड करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सिम्बायोसिस? सो इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स ईच, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म बिकॉज इज सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई। दो तरह के एल्गी और फंजाई, दो तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं। सो हियर यू कैन सी सम क्वेश्चन। व्हाट इज़ राइजोबियम? सो राइजोबियम आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया होता है जो रूट नोड्यूल्स पे रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइजोबियम? राइजोबियम हेल्प लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब पी प्लांट, ग्रैम प्लांट, इस तरह के प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हाउ डज राइजोबियम हेल्प फार्मर्स? हेल्पिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। वाई डू फार्मर्स प्रीफर टू स्टोर लेग्यूमिनस प्लांट्स? Leguminous plants are carry nitrogen fixation in soil and thus improve soil fertility. In which form do plants absorb nitrogen? So plant absorb nitrogen in the form of nitrates. So thank you student, your first chapter is completed now. Thanks.